माई फादर हैज़ बिन डूइंग, उनको 40 साल हो गए फिल्मों में, 50 साल हो गए स्टेज पर, और इतने सालों में उन्होंने कभी वल्गर कुछ किया नहीं, ना ही कुछ बिलो द बेल्ट बोला, ना ही कोई गाली गलौज की। लाइक समबडी, एक रिलीजन को हम फॉलो कर रहे हैं तो हम उसके प्रति हमारे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, तो अगर कोई उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो बहुत उसके फॉलोअर्स बड़े अपसेट हो जाते हैं, देन पीपल वोकली अपोज इट एंड से एंड दे एक्सप्रेस। आई एम वेरी कॉन्शियस कि मुझे आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट्स। देयर आर यंगर पीपल हु एंजॉय इनसल्ट कॉमेडी, देयर आर यंगर पीपल हु विल गो टू क्लब्स जहाँ पर कस वर्ड्स बोले जाते हैं। In film story also, storytelling also, if it's coming from the character, nobody will feel bad. Correct. When you इसको use करके आप attention ले सकते हो, आप हंसा नहीं सकते। I mean, power is not just what you do; it's also about what you say and where you say it. As a content creator who dabbles in comic and comic timing, the humor of it, do you draw personal lines for yourself? Are there proverbial Lakshman Rekha? Given the controversy that is raging, do you feel as a content creator one has to be very, very responsible? If so, what are the lines for you? I'll just speak for myself. The family that I come from, लीवर खानदान से। My father has been doing, उनको 40 साल हो गए फिल्मों में, 50 साल हो गए स्टेज पर, और इतने सालों में उन्होंने कभी वल्गर कुछ किया नहीं, ना ही कुछ बिलो द बेल्ट बोला, ना ही कोई गाली गलौज की। उन्होंने हमेशा ऐसी कॉमेडी की where the entire family can sit together and watch, and he's been appreciated for it. And he's very sure that this is the kind of comedy I want to do because I want to cater to the masses. हमारी जो masses है, भाभी है, दादी हैं, बच्चे हैं, he just wanted to cater to that bigger audience. तो वो चीज़ मेरे लिए भी बहुत क्लियर थी when I came into the industry. I said, yeah, I have to carry forward this legacy, I have to carry forward the family name, and I have to carry forward the style of comedy. So I was very sure that whatever I do, I want to do comedy जहाँ मेरा पूरा family can sit together and watch. Correct. ये नहीं कि कोई ईयरफोन लगा के छुप के अकेले में बैठ के देखो. That is a different type of comedy which people enjoy. There is an audience for it. Insult comedy or there is whatever roasting हो जाए, ये सब forms of comedy हैं जो लोग enjoy करते हैं. There is an audience for it. For us, we were very clear. We want to do something for the masses, for family audiences. अभी आप मेरे शो पर आइए, वहाँ पर दादी भी बैठी हैं and then granddaughter is also sitting. 16 साल की बच्ची बैठी है, 5 साल के बच्चे बैठे हैं, and they are enjoying the show, and that's the style of comedy I love. Because I want my own family to be able to watch it. So yes, when I'm creating content, I'm very conscious कि I don't want to upset anybody, I don't want to hurt the sentiments of anybody, and we are as a nation, हम बड़े emotional भावुक लोग हैं. Correct. हमारे बहुत sentiments हैं, हमारी बहुत feelings हैं. We like somebody, एक religion को हम follow कर रहे हैं तो हम उसके प्रति हमारे बहुत ज़्यादा feelings हैं. तो अगर कोई उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो बहुत उसके फॉलोअर्स बड़े अपसेट हो जाते हैं, देन पीपल वोकली अपोज इट एंड से एंड दे एक्सप्रेस. या आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ बोल दो तो उनके जो फैन क्लब्स हैं वो कुछ बोलने लग जाएंगे. तो फॉर मी आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज बीन इन द इंडस्ट्री, अ पर्सन हु इज डन so much clean comedy and the kind of work he's done. I as a daughter, I have the responsibility of maintaining that style of comedy, keeping it decent, keeping it respectful, keeping it graceful more than anything else. तो वो चीज़ मुझ पे सूट करती. हालांकि जब मैंने शुरू किया था, when I was doing stand up, some people suggested कि आप कुछ say ना some cuss words, try ना थोड़ा vulgar comedy. I said sorry, मुझसे होगा नहीं, मेरा कैरेक्टर ही नहीं है, मेरा नेचर ही नहीं है, तो मुझसे हुआ नहीं, तो वो नेचुरली नहीं आ रहा था. तो yes, I am very conscious कि मुझे I don't want to hurt anybody's sentiments, and जबकि मैं मिमिक्री कर रही हूँ तब भी कहेंगे अरे मजाक उड़ा रही हूँ. अरे बट मिमिक्री इज अ फॉर्म, इज एन आर्ट फॉर्म. तब भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं. तो आप सोचिए लोग कितना इमोशनल है. करेक्ट very touchy, also sensitive. Yeah. But one also has to be sensible in order to know that sensitivity. Correct. So you just know your audience. Yeah. You understand your audience. We understand our audience. My father's very nicely understood कि कौन सी ऑडियंस को क्या पेश करना है, क्या पेश कर रहे हैं. He knows exactly. तो मेरी ट्रेनिंग वही है. तुम अपनी ऑडियंस को समझो, ये पचेगा नहीं, ये पचेगा. What about the changing norms of comedy? Are there definite right and wrong therefore?
No, because see, there is like I said, there's an audience for everything. Hmm. There are younger people who enjoy insult comedy. There are younger people who will go to clubs जहाँ पर cuss words बोले जाते हैं. Because आपस में दोस्तों में वैसी बातें होती हैं, and they like that style. Yeah. So उसमें बुरा क्या है? अब clubs आप देखिए small stand-up clubs वो तो business में है ना. They're Correct. still doing business. Why people are coming to watch? Yeah. So I'm saying there's an audience for everything. You know, if so. The moment. You want to No, address Yeah. You're saying it very effectively. Correct. At the same time, unless you give them the right palette to understand what clean comedy is all about, and the happiness and the joy you derive out of it, as opposed to cuss words and insult comedy or roast comedy. Of course, these are forms of the art. Yeah. But what you want to vouch for, what you want to promote, is entirely in your hands, right? Yeah, it is in your hands, and I think as artists we have to be little bit sensitive and little bit conscious of आप किसको serve कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा हमारी audience कैसी है, and just you have to be sensitive to that and little bit conscious of that. Because if you are, then people will not react in such a way. Yeah. You're not offending anybody, और फिर इतना कोई बवाल नहीं बनेगा. And if you are ready for the claps, be ready for the kicks also. Na, if you're going wrong. Yeah. Be ready for If you the kicks, big yeah. So if you're Taking that taking much all risk. the fame, you're taking everything, then the other side of it is also there in life, na? But bhai, you also make a lot of comedy content. Correct, What yeah. do you feel about this? Yeah, I feel कि if you are using abusive language or something like that, na, it should come from the character. हाँ, I always feel understand that. yeah. Nice. That's a different perspective. In film story also, Yeah. storytelling also, if it's coming from the character, nobody will feel bad. When Correct. you watch Gangs of Wasipur, Yeah. you will never feel bad because Because, that's yeah, coming character. from the character. Yeah. But आप गाली इसलिए डाल रहे हो Style. कि एक होता है ह्यूमर और कूल बनने की और- क्योंकि desperation हाँ, और एक होता है कि मैं आपको शॉक कर दूं. desperation भी, हाँ. आपका ओह शिट ये क्या बोल दिया इसने, एंड यू फील स्कैंडलाइज्ड कि अरे हाँ. दिस इज नॉट कॉमेडी एंड इसको यूज करके आप अटेंशन ले सकते हो, आप हंसा नहीं सकते. Correct. तो अटेंशन लेने के लिए भी कई बार ऐसा किया जाता है, बट आई फील कि आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, कस वर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इतना अच्छा सेंस होना चाहिए स्टोरी टेलिंग का कि मैं ये क्यों डाल रहा हूँ और ये कैरेक्टर से क्यों आ रहा है. व्हेन योर मोटिवेशन इज क्लियर, जब कैरेक्टर का मोटिवेशन क्लियर है, कहानी का मोटिवेशन क्लियर है, तो स्टैंड अप में भी जो लोग फिर वहाँ पर ये बाउंड्री हमको बनानी चाहिए कि बॉस ये कंटेंट अगर आपको अब भी पसंद नहीं है तो आप ना देखें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, आप वो वाला देखें जो आपके लिए है. तो मुझे लगता है इसके बाद बाउंड्री डिवाइड होनी चाहिए. एंड वी आर एज न्यू एज कॉमिक्स ना बहुत सारे वेस्टर्न कॉमेडी से इंस्पायर्ड हैं. उनका रेफरेंस पॉइंट वो है. Yeah. Correct. हम वहाँ के रोस्ट शोज देख रहे हैं, Yeah. जो वहाँ की ऑडियंस दे यूज्ड टू इट. We're Yeah. different उनका people. culture है. Yeah, we're एंड different ऑल्सो आई people. फील कि जो रोस्टिंग कल्चर है, अगर यहाँ पर कैमरा ना और हम 4 दोस्त हों तो हम अच्छे से एक दूसरे को रोस्ट करेंगे, करेक्ट. लेकिन इट शुड कम फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो. Yeah. क्योंकि मुझे और किसी का नहीं पता, मुझे कॉलेज तक नहीं पता था कि रेसिज्म क्या होता है. मुझे सच में, मुझे रॉकी और रानी का मोनोलॉग इसीलिए अच्छा लगता है, रणवीर सिंह का, कि जो बोलता है हमें पता ही नहीं था कि गिट्ठे को गिट्ठा और काले को काला बोलने से बुरा लग सकता है, हमें किसी ने सिखाया नहीं. तो हमें स्कूल में ही जब 4 दोस्त बैठते हैं तो एक दूसरे के माँ बाप के बारे में ऐसी बातें बोल देते हैं रोस्ट करने के चक्कर में. उसी टाइम उस चीज़ को देखना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि बॉस आप किसी के माँ बाप के बारे में या किसी के बारे में ये रोस्टिंग नहीं करते, इसको बेटा रेसिज्म बोलते हैं, इस पे आपके ऊपर केस हो सकता है, इसके ऊपर ये हो सकता है. जब बचपन से या तो डरा के समझा दो या तो प्यार से समझा दो, तो आपको पता होता है. बिकॉज मैंने भी जब बाहर दुनिया में मैं निकला तो मुझे पता चला, अच्छा ये नहीं बोलते हैं बॉस, ये बहुत गलत माना जाता है, वो नहीं बोलते हैं बॉस, ये बहुत गलत माना किसी जाता को हर्ट होता है इससे. है. तो ये आप ठोकर खा के सीखो, इससे अच्छा आपको पहले सिखा दिया जाए अगर एजुकेशन सिस्टम में ही कि बॉस ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं, तो मुझे लगता है सिखाते ही हैं स्कूल में, लेकिन थोड़ा और इसके ऊपर थोड़ा जोर देना चाहिए. अब आमिर खान साहब ने बहुत अच्छा कहा था उसके ऊपर कि ये जो है ना कस वर्ड यूज करते हैं फॉर द इफेक्ट. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट दैट इज नॉट माय स्टाइल ऑफ कॉमेडी. It doesn't stay forever. 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड तक मैं यूज करता था. उसके बाद गाली देना छोड़ दिया. Correct. किसी का इंसल्ट करके या कस वर्ड करके कॉमेडी ना मेरा स्टाइल नहीं है पर्सनली, Yeah. सो आई स्टे अवे. Yeah. व्हिच वाज वेरी मैच्योर वे Yeah. ऑफ डीलिंग Yeah. विद इट. A lot of comics have actually admitted openly कि कई बार ना जोक में दम नहीं होता, हम गाली डाल देते हैं और फिर लोगों का रिएक्शन आता है. Yeah.